welcome everybody on this very special session, which is a face-to-face with a high-performance women entrepreneur. So we're starting the Mentoring Dialogue series. The intention is that women of a city who've made remarkable achievements at an international level, bringing a lot of fame to the country, the city, their family. It's very important to share such success stories. And while we are going to be hearing the success story today of a very senior women entrepreneur from the city, Leela ji. And I know all of us probably know her and the work she's done. But today we're going to hear from a very different perspective. And while I'm going to let you know that the Women Mentors Forum is an initiative that got into existence because of me becoming a mentee to an international mentor in the United States. And I started with the Global Mentoring Walk in the year 2011. And because of the walks that I've been doing every year, that in 2014, we constituted the Women Mentors Forum. So we've impacted the lives of more than 600 women of our city through peer mentoring, through mentor-mentee relationships. So what is the core purpose? The purpose of the Women Mentors Forum is have women alter their mindset, a mindset that can help them evolve, a mindset that can actually help them fulfill their dreams. And here at the Women Mentors Forum, while we have all accomplished women professionals and entrepreneurs from the legal sector, the medical sector, the chartered accountancy, finance, entrepreneurship. So we all, we are here to pay it forward because we are being, the society has invested in us. We are privileged. We are making sure that we invest in the younger generation. And we take on a mentee who's a young budding professional. So we make sure that we help them achieve her dreams. So we get into a one-to-one peer mentoring relationship, and we then share the success story. So every month we would have a business pitch event, and during the business pitch event, we have around 4 young mentees that we take on. We nurture them at an early stage because there are a lot of forums in the country who would actually take on, a lot of mentoring who have already evolved to a certain level. But if you look at the early stage mentoring is not available at a lot of places. So at the Women Mentors Forum, we connect at a level which is very at the level of the soul, that's a soul connect where people have found in, where it's like it's just at the right time they've found somebody who has just come into their lives to help them. So that's what we do. And as at peer mentoring, what we do is that like I get along with another, Archana ji, who's a dietitian. She runs a slimming center. Then we have Shivali, who's a jewelry designer. Then we have Anju, who's been from the corporate sector. So we connect with each other, help each other facilitate, make sure that we create an ecosystem for women to nurture their dreams. So that's all what we do at Mentoring here. So it's been like 2004, since 2014, we've been engaged for the last 6 years into it. So we do almost 3 events every week to make sure that we can create an ecosystem, we help each other and facilitate this thing. So the intent is to share, connect, share, and inspire. So sharing is very important. So today we're going to take a sharing from Leela ji. So before I go on to talking about Leela ji and sharing, having questions with her, I'd like Shivali to introduce Leela ji to the forum today, because we are all on Facebook Live, and Arch College has promoted it completely in its network. So this session is being right from LinkedIn to Facebook. It's everywhere available. So I'm sure that the outreach is going to be big, and we're going to hear some amazing aspects today of her life, which could be inspiring for a lot of us. So Shivali, could you please introduce Leela ji? Good evening all. Good evening everybody. Today in our inaugural session on high performance women entrepreneur, we are proud to introduce you all to Srimati Leela Bodia, an immensely well-known and successful socialpreneur. She has revived the blue pottery of Jaipur since 1978. Leela ji and her firm Nija International are synonymous with the name Blue Pottery Object. Her work has been flawlessly accepted by one and all, and the awards and the felicitations ornamenting her office over the years are proof enough of her excellence and recognition. There are too many to enlist here, but here are some prominent ones. Leela ji has paved her way into the Limca Book of Records.
She has been featured in at least 50 magazines and even course books on entrepreneurship. Numerous awards were bestowed on her for her export excellence and reviving a lost art. In her words, her biggest award in the last 3 decades is to instill smiles and self reliance abilities in the small villages and in and around Jaipur district. And I will very quickly give a short introduction to our uh, Archana ji, Archana Surana, who will be taking the conversation forward with Srimati Leela ji. Archana Surana, the founder of Women Mentor Forum, and our chief mentor, is a well-known name in the Pink City. She successfully carries forward a legacy of 20 years as a founder and director of Arch College of Design and Business with a passion to contribute in the space of youth and women empowerment. A widely traveled and a noted speaker, she sits on various national and international forums of academia in an industry. She has been appointed as the Dean of Fashion, Design Faculty and Academic Council, member of Rajasthan ILD, Skills University, chairperson, Committee of Honorary Doctorate Degree Awards. She is the chairperson for the Fashion Colloquia 2020, an international research colloquium hosted and organized by Arch College of Design and Business in Jaipur from 26th to 30th of January 2020. She is a Vital Voice Lead Fellow and a Yuva Icon Awardee at the hands of former Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. Over to you, Archana ji, to take the session forward. Thank you, Shivali. So to let you know all that Shivali is a monthly accountable for, for the this year's initiatives. And I'm so glad that, we could initiate a new series in her leadership this year. And thank you, Shivali, for making it happen. And so now we're going to take the conversation forward as we've been, so we're going to touch upon mentoring, creativity, and entrepreneurship. And high performance is what is going to be key today. Leela ji, while you've been into a creative profession, what got you into this creative profession? What was that tipping moment, or when did you decide that blue pottery or ceramics is going to be your life journey? Okay. Dr. Archana Surana and Shivali ji, thank you so much. You have spoken so much, but it looks like that I am privileged to be here today. Well, the first question is, what made me to come in this field? If I go back, almost 65 years back, my mother used to work with Mother Teresa, helping in a very different way. After independence in Calcutta or whole India, it was very different. Probably a lot of people, they don't know, they don't have any idea about how difficult it used to be to survive during those days. And to work with Mother Teresa, you could imagine for India, the poverty, so many difficulties were there. And while seeing in a corner sitting to see my mother working and washing the clothes for those young people, for old people, though she was very educated and everything, yet she wanted to work as a social worker. And during those days, I thought this is the best work in the world because your mother is doing. So mother can't be wrong. Mother can't be anything else. Mother, our mother. And that was always in my back of the mind. When I came to Jaipur, and since my husband, he was quite busy, used to be very busy, and I used to get a lot of time in my hand. And then I decided, why not I should work the way my mother used to work. Started going to
all those slum areas. I hate to call those slum areas. Today over there's no slum area, but that time I started going to those slum areas and started asking what you all are doing. Will you work for this thing if I help you? But there was a difference between those days and the early 70s. There was a difference when my mother used to help somebody. उनकी लोगों की आंखें नीची होती थी. And when I started helping those people, उनकी demanding आंखें होने लगी. And then and there I realized, why should I give anything without working? Why should I? And then, I mean, days and days, I used to go over there 2-3 hours, and I saw one day that in a room, 5 people are working. And sitting over there, I asked, what you all are doing? जी हम blue pottery बना रहे हैं. What is blue pottery? जी ये एक चीनी मिट्टी के बर्तन है. ये चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? क्योंकि मुझे ABC कुछ भी नहीं मालूम थी. ये चीनी मिट्टी के बर्तन है जी. और मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? एक कमरे में 5 लोग क्यों बैठे हैं? बोले जी हमारे पास गांव में काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं. तो मैंने कहा कि अगर मैं काम दूं आपको तो आप करेंगे? उन्होंने कहा कौन हमें काम देगा? और इस तरह उनको दिमाग में बिठाने में मुझे 2 साल लगे कि आप अपने गांव जाइए, आप अपनी खेती करिए. बोले खेती तो 2 ही बार होती है, बारिश पे डिपेंड करती है. मैंने कहा इसीलिए तो आप वहां खेती कीजिए और वहां ये काम कीजिए. किसी तरह 2 साल में एक जना मेरे पास आया, उसका नाम मैं हमेशा लेती हूँ, मैंने किताब में भी उसके बारे में लिखा है. लाला राम उसका नाम था. और वो मुझे गांव लेके गया. तब बिल्कुल सड़कें भी नहीं होती थी. बड़ी मुश्किलों से हम 3 घंटे में उस गांव पे पहुंचे, जहाँ की आज हम 30 से 35 मिनट में पहुंच जाते हैं. और इस तरह से धीरे धीरे उनके साथ मैं बैठने लगी, उनको चीजें बताने लगी. पर हमारा जो मुश्किलें हमारी यही नहीं खत्म हुई. मुश्किलें ये थी कि मुझे कुछ नहीं आता था. मैं उनके साथ जुड़ तो गई, मुझे कुछ नहीं आता था, पर फिर भी मैं सीखते सीखते उनके साथ हमने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी चीजें बनानी शुरू की. अब हमारे सामने प्रॉब्लम जो आई वो पैसे की कि मैं रोज पैसा उनसे कैसे दूं. तो मैंने मार्केटिंग शुरू करी. अब मार्केटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि जब किसी फील्ड में हम आते हैं तो उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं था. और उसको सीखने के लिए मैं खुद सीखने लगी और उन्हीं से सीखते सीखते मैं आगे बढ़ने लगी. और इस तरह से मेरी ये जर्नी शुरू हुई जो आज तक चल रही है. मैं ग्रैंडफादर के साथ काम करती थी और आज उनके ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ काम कर रही हूँ. तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी है. तो लीला मैम बहुत सुंदर आपने कहा कि आपने, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम बात किसी की मदद करने निकलते हैं या कुछ है, आपके साथ एक प्रकरण हुआ जहां आपने कुछ लोगों को देखा और वो लोग काम मांग रहे थे. मानिए ये कोई और तरह का काम होता, मान लीजिए खेती बाड़ी का होता, तो क्या आप वो कर लेती? क्योंकि आपने ब्लू पॉटरी जैसी एक विधा को चुना, आपने ये आर्ट फॉर्म को आपने चुना, ये क्रिएटिव फील्ड है जहां पर, तो आपके अंदर में ऐसी क्या बात थी कि आपने इससे कोई ये अपॉर्चुनिटी देखा? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है हमारे सामने, मेरा ये मानना है. तो आपके अंदर आपने क्या देखा कि जिसमें आपको लगा कि यही आपके लिए सही है? नहीं, देखिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए सही है. या मैं तो ये सोच रही थी कि स्लम क्यों बना है, स्लम को मुझे हटाना है. और जब स्लम की जिम्मेवारी ली है कि मुझे स्लम एरिया हटाना है, उन लोगों की जिम्मेवारी लेनी है, तो किसी तरह उनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी मुझे. जबकि मैंने चैलेंज उनसे दिया था कि मैं आपको काम दूंगी, तो मुझे काम देना ही था उनको, इसलिए मैंने ये फील्ड चुना. तो चलिए फिर इसका मतलब तो और भी इंटरेस्टिंग हो गई आपकी कहानी कि आपका बैकग्राउंड क्रिएटिव फील्ड नहीं था, आप कोई आर्ट एंड कल्चर की तरफ आपका कोई बेसिक रुझान नहीं था, जो रुझान था आपका सोशल वर्क की तरफ था. बिल्कुल. और वहां से आपने अपने आप को इतना नर्चर किया. अब मानिए कि देखिए आपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, आपने नए आइडियाज जनरेट करे. ये नए आइडियाज आपको कैसे आए, कब आए, किस क्या क्या हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं लेकिन आपने कटिंग एज, बिल्कुल आप एकदम
अव्वल नंबर की रही हैं. You have done exemplary kind of work जो कि एक ट्रेंड सेटर रहा है. तो वो ट्रेंड सेटिंग आइडियाज जो कि एक क्रिएटिव फील्ड के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होते हैं. हाउ डिड यू नर्चर दैट बिट? ये मैंने, आप बहुत सही मेरे से सवाल पूछ रही हैं. जब आप किसी फील्ड में घुस जाते हैं और आपको ये लगता है कि आपको ये काम करना ही है, और उसकी जिम्मेवारी जब लेते हैं तो आप खुद भी उसके अंदर सीखने की कोशिश करते हैं. और सबसे बड़ा पॉइंट मैंने ये जो लिया वो ये था कि ये क्राफ्ट है. क्राफ्ट कब चलेगा? अगर हम इसमें यूटिलिटी आइटम डालेंगे, क्योंकि एक फ्लावर पॉट घर में एक ही रखेगा इंसान. ये मेरा की पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहूंगी. वो की पॉइंट है कि यूटिलिटी आइटम बनाना है, तभी हमको मार्केट ज्यादा मिलेगा. हम अगर एक फ्लावर पॉट बनाते हैं तो एक ही जगह एक रख दिया, बस हो गया. पर अगर हम मोती बनाएं, जो कि मैंने सबसे पहले इनोवेट किए, मोती बनाएंगे तो उसकी माला बनेगी, फैशन चेंज होगा और दिन ब दिन उसके आगे हमको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी. उसी तरह हमने नॉब्स बनाए, हार्डवेयर बनाए. तो जो की पॉइंट मेरा था वो कि कोई भी क्राफ्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें हम यूटिलिटी आइटम बनाएं. और उस यूटिलिटी को देखते हुए मैं आगे बढ़ती गई. और ये मेरा जो फोटे हो गया कि हर चीज में मैं ये देखने लगी कि इसकी यूटिलिटी क्या है. एक और कहानी मैं बताना चाहूंगी. जब इस ब्लू पॉटरी में मैंने कलर्स चेंज किए, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते थे कि भाई आप कलर चेंज कर रही हैं, ब्लू पॉटरी नहीं रहेगी. तो मैंने जब येलो कलर चेंज किया, मुझे बहुत सारी मतलब मुश्किलें भी आई. पर कलर चेंज करने के बाद, कीपिंग माय आइडेंटिटी, आई चेंज सो मेनी कलर्स. एंड जैसे ही मैंने कलर चेंज किया, इस ब्लू पॉटरी का दायरा बढ़ता गया. तो हमको ये नहीं सोचना है किसी भी क्राफ्ट को लेने के लिए कि इसमें अगर हम चेंजेस करेंगे तो शायद बिकेगा या नहीं बिकेगा. जरूर बिकेगा. इनोवेशन एंड यूटिलिटी, ये दो चीज मैं खास तौर पे ध्यान रखती आई हूँ. बहुत सुंदर आपने ये बताई ये बात. एंड बहुत तंत है आपकी इस बात में, क्योंकि 80 कंट्रीज तक आपने एक्सपोर्ट्स किया. और आज देखिए, आज की तारीख में तो डिजिटल मीडियम ने सब कुछ खोल दिया है, जहां पर आप किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं विश्व में. जब आपने शुरुआत करी थी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ भी एवेन्यूज ओपन थी. तो मैं ये नहीं सुनना चाहूँ, मतलब मैं समझ रही हूँ कि उस समय प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है फेयर्स में गई होंगी, वहां पे बायर्स मिले होंगे और आपने संपर्क चालू किया होगा. बट आपको इसके अलावा अगर मैं पूछूं तो वो क्या ट्रेड था आपके अंदर जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप 80 देशों तक पहुंच पाए? उसका एक ही सीक्रेट है, वो ये कि जब आपको कुछ काम नहीं आता है और आपको लोगों को बताना है और आपको अपने आप को स्टैंड करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा. और मेरे को ये लगता था कि ये जयपुर ब्लू पॉटरी की आइडेंटिटी रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है. तो मैं और देशों में ट्रैवल करना शुरू किया. और ये एक बहुत बड़ा कारण मैं हमेशा बताती हूँ सभी को कि ट्रैवलिंग इज मस्ट. क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पे हम देखेंगे अपने आप को तो हमको लगेगा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पर जब हम बाहर निकलते हैं और जब बाहर देखते हैं, तब अपने आप को असेस करते हैं, अरे हम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया बहुत कुछ कर रही है. तो हमको अपनी आइडेंटिटी रखते हुए बहुत कुछ सीखना है. और इस सीखने के लिए मैं हर साल, जहां मुझे कोई कहता था कि उस कंट्री में इस तरह की सिरेमिक बनती है, मैं पहुंच जाती थी. और सबसे पहले मैं मैक्सिको गई. आप यकीन मानेंगे, मैक्सिको जैसी सिटी में अगर 35-40 साल पहले कोई जा रही है महिला, और उसकी क्या हालत होती होगी. पर मैं जाती थी 100 किलोमीटर, क्योंकि वहां रहने की जगह नहीं. 100 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ के जाती थी, वहां पे काम सीखती थी और वापस उसी दिन लौट के आती थी. और इस तरह मैंने 1 महीने वहां पे काम सीखा. तो जो ये एक चीज है कि हमको अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो अपने आप को असेस करना बहुत जरूरी है. और जब तक हम अपने आप को असेस नहीं करेंगे, हम नहीं सोचते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और सिरेमिक में तो हम बहुत 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 पीछे हैं. और यही कारण है कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप इसमें मशीनें क्यों नहीं लगाते हैं. द डे वी इम्प्लीमेंट द मशीन,
we will lose our identity because we are not that extent like our craftsmen, they are not that trained. Craftsmen एक दूसरे से सीखते हैं और हमारे पास इतनी सहूलियतें नहीं होती हैं कि हम उनको ट्रेन कर सकें। तो जो है उसको बचाने के लिए उसी में इनोवेशन और उसी में हमको अपने आप को आगे बढ़ाते रहना होगा। बहुत सुंदर लीला मैम। तो आपने कहा जो मैं हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर की बात करती हूँ, तो सुब्रतो बागची ने एक बुक लिखी है हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर एंड ही इज अ वेरी बिग नेम। सो मुझे ये लगा कि कई बार हम जब एंटरप्रेन्योर देखते हैं तो हमारे इमेज में जनरली एक मेल फिगर सामने आके खड़ा होता है, क्योंकि एंड व्हेन वी you know and we have probably just not even tried to touch upon how many high performance women entrepreneurs we have. And I feel so elated कि आपने जो अभी ये बात बोली है, इतनी गहरी बात बोली है कि ट्रैवल करना कितना अनिवार्य है। मुझे याद है जब मैंने 2 कमरे में घर में जब शुरू किया, पहले साल 6 महीने के अंदर मैं लोन लेकर के लेस्टर गई। 1 महीने का मैंने कंटूर डिजाइन में प्रोफेशनल कोर्स किया एंड उसने जब मैं 2 कमरे में थी केवल, एंड उसने जो मेरा विजन ब्रॉड किया ऑफ हाउ यूके एंड व्हाट यूके बेंचमार्क्स आर, मैंने फिर वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करके देखा। सो कितनी गहरी बात, मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई कहीं मैं आपसे, मैंने कभी पहले मिली नहीं थी, बट आई थिंक एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत गहरी बात बोली आपने। अगर मैं आपसे और कुछ टिप्स बोलूं कि हाई परफॉर्मेंस एक एंटरप्रेन्योर बने रहने के लिए, शुरुआत बहुत अच्छी करी लेकिन टिके रहना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम महिलाएं हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, और नानी दादी भी हूं मैं, तो कुछ ऐसी बातें भी मैं बोलना चाहूंगी जो हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। टिके रहने की बात आप कह रहे हैं ना, तो जब हम बाहर निकलें काम के लिए, आप ये भूल जाइए कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप ह्यूमन हैं। किसी भी हालत में ये मत सोचिए कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो टिके रहने का ये एक मैं कारण हमेशा सोचती हूँ, और ये चीज मेरे माँ ने मेरे दिमाग में घुसाई, सोचिए कितने साल पहले, कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। बिल्कुल मत सोचिए आप 100 आदमी हैं, चले जाइए, भिड़ जाइए और आपको काम करना है। दूसरी बात ये कि स्लो एंड स्टडी बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि हम महिलाओं को हमारा घर भी देखना होता है, हमारे बच्चे भी देखने होते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। Women can run the house properly, can run the whole world. Listen again, a woman who can run the house properly can run whole world. And ये चीज जो है, जब आप बाहर, आपका घर सही रूप में चलेगा, आप खुशी खुशी घर से निकलेंगी, और जब खुश आप घर से निकलेंगी तो आपका एनवायरनमेंट खुश रहेगा, आपका ऑफिस खुश रहेगा, आपकी हर चीज खुशी खुशी से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो एक कारण जो मैं अपने आप में समझती हूँ। और एक दूसरा कारण है कि मैं बहुत स्लो गई हूँ, बहुत धीरे धीरे, जैसा आपने कहा 40 साल पहले बहुत कम महिलाएं, 45 साल पहले बहुत कम महिलाएं काम में लेती थी। और एक वाकया ये भी है कि एक मीटिंग में मैं जब निकली तो जिस तरह रो होती है, वहां पे जिस रो में मैं बैठी थी, कोई भी मेन आके बैठे नहीं वहां पर। उस दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, और फिर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की मैं पोर्टफोलियो भी बनी। तो आप सोचिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचना है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा अपना घर, जो कि हमको सुचारू रूप से चलाना होता है, और उसके बाद हमको बाहर की दुनिया को देखना है। तो हम बाहर की दुनिया उसी लेवल पे चला सकेंगे जिसको हमें चलाने के लिए खुशी मिलती है, और यही मेरा मंत्र भी है। बहुत सुंदर कहा आपने। मैं ये देख रही हूँ कि आप में और मेरे में शायद जनरेशन का गैप होगा, पर मैं सोच में कहीं कोई गैप नजर नहीं आ रहा है मुझे। और जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे चैट बॉक्स में भी, उसमें भी सब लोग कितना अलाइन हो रहे हैं आपकी इस बात से। चाहे एक जो मानसिकता है,
आई थिंक जब हम एक इवॉल्व्ड माइंडसेट की बात करते हैं तो वही मैं विमेन मेंटर्स फोरम में जब मैंने महसूस किया कि जब मैं जयपुर शहर में आई थी, आपको पता है मुझे लोगों ने ये बोला जयपुर में तो कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, आप दिल्ली से आए हो, आपके लिए क्या है यहाँ अपॉर्चुनिटीज, यू नो। एंड अब ये देखिए मेरी कर्म भूमि बनी, मैंने सब कुछ यहाँ से पाया। तो कई बार कहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, वो अपॉर्चुनिटी जैसे आपने कलकत्ता से आकर के यहाँ देखी, मैंने दिल्ली से आके देखी, तो ये बड़ी खूबसूरती की बात ये रह जाती है कि अपॉर्चुनिटी देखने की जो क्षमता है उसको कई बार लोग कई बार कहते थे गो गेटर है, ये है, पर आई थिंक ये एक बड़ी प्रबल क्षमता है जिसको हम सबके अंदर में हमें इसको विकसित करनी चाहिए। जैसे आपने कहा फंक्शनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म एंड फंक्शनैलिटी। तो जैसे ही आपने फंक्शन देखा आपको एकदम आइडियाज खुलने लगे। सो अगर बहुत सुंदर आपने दो बुलाए, तो मैं अब तो चाहूंगी कि जो हमारी ऑडियंस है, आई मीन हमारे विमेन मेंटर्स फोरम के हैं एंड आई थिंक आर्ट्स कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट्स आके जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे भी मैं चाहूंगी कि दे हैव क्वेश्चंस, दे शुड आस्क यू दिस क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव कवर्ड creativity so beautifully, you've covered your entrepreneurship journey as a high performer as beautifully. लेकिन एक चीज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जो वो चाहते थे कि भाई महिलाओं के लिए, आज की जो महिला है जहां पर कंपटीशन क्योंकि अब बढ़ गया है, बहुत सारी महिलाएं काम में आ गई है, वहां पर आपको क्या लगता है कि क्या अहम है अभी एक महिला के लिए कि वो क्या ध्यान रखे? शॉर्ट टर्म पे ना जाए, लॉन्ग टर्म पे जाए। कंपटीशन तो हर उसमें आएगा और आता रहेगा, पर उस कंपटीशन से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं 2 साल में 3 साल में इतना अचीव कर लूंगी, नहीं, आप धीरे धीरे अचीव करते जाएं, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी जिम्मेवारियां को संभालते हुए। तो आप कभी भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी नींव इतनी पक्की होगी कि कोई आपको गिरा नहीं सकेगा। अक्सर लोग पूछते हैं चाइना से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो चाइना नहीं कर सकता है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमेशा ध्यान रखिए, और स्पेशली अपन सबके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। So I am going to keep the house open for a couple of questions. So chat box में आप मुझे लिख सकते हैं and put on the question, I'll take it up. You can write on the chat box, yeah. So meanwhile हमें questions मिल रहे हैं। लीला जी, और कोई ऐसी गहरी बात है जो आप शेयर करना चाहे? अब जैसे आपने इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, आपने अपनी जो बुक है वो आप प्रेसिडेंट को पेश करके आई, एक कॉपी आपने मुझे भी दी, and anybody who wants to have a look at it, it's already on the Arch page Instagram, which is already there right now, so you can have a look at it. And तो आपके लिए अभी क्या है जो आप you are looking forward to? देखिए, अभी भी बहुत बाकी है करने के लिए, बहुत करना है, क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचती रही हूँ मैं। और वो ये है कि इसमें काफी कमियां हैं जिसको हमको दूर करना है। और मेरा एक वो है कि एक इसका म्यूजियम बन जाए ताकि हम धरोहर दे के जा सके। और सभी लोगों से मैं ये आशा भी करूंगी कि आप लोग अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं तो दो चार ऐसे अच्छे पीसों को बचा के रखिए जिसका कि हम म्यूजियम में डोनेट कर सके या म्यूजियम बना सके। अगर इतने पीसेस हो गए तो हम अपना म्यूजियम बना लें। जब भी आप बाहर जाते हैं, ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान के पीसेस उनके म्यूजियम में बड़े अच्छे तरीके से रखे रहते हैं और इतना मन वो होता है, ओ गॉड, ये तो हमारे हिंदुस्तान का है, ये तो हमारे भारत का है। तो मेरी यही इच्छा है कि अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं और आप लोगों को लगता है ये एक नया पीस है, उसको प्रिजर्व करके रखिए और अपने आने वाली पीढ़ी को देते जाएं। और उसके बाद उसका म्यूजियम में आना हमारे लिए, भारत के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत सुंदर कहा लीला जी। हमारे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर खूबसूरत ज्ञान म्यूजियम बना है जो कि सीतापुरा में है, जो डड्डा फैमिली ने बनाया है। देखने लायक है वो म्यूजियम। आप गई हैं क्या वहाँ पे? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है इस चीज का। अरे लीला जी, वर्ल्ड क्लास एक म्यूजियम जयपुर शहर में जो लोग जानते नहीं है, क्योंकि दे हैव केप्ट इट फॉर ओनली जो लोग कदरदान है उनको ही देख सकते हैं उसको। एक फ्रेंच अमेरिकन आर्किटेक्ट ने तैयार किया है और अरुण डड्डा जी और इन लोगों का तैयार किया हुआ है। उनकी जो सिल्वर जो अपने सिल्क रूट के ऊपर में जब वो ट्रेडिंग करते थे डड्डा साहब, तो उन्होंने जितना कलेक्शन किया, आप एक एक चीज ऐसी शानदार रखी हुई, आपको देख लेना है क्या।
एंड आप तो जाएंगे तो पूरा दिन लगा देंगे वहां पर, और इतना एस्थेटिकली फाइन बना हुआ है, एकदम मन आनंद मंगल हो जाएगा। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं उनके म्यूजियम के जीव ज्ञानचंद जी डड्डा, जिन्होंने जो यहाँ के बहुत बड़े वो थे जूलर थे, उनका बनाया हुआ है वो, उनके बेटों ने बनाया है ज्ञान म्यूजियम के नाम से। सो मेरा काफी इत्तेफाक रहा। इनफैक्ट अभी कलोकियम पे हमने स्पेशली फील्ड ट्रिप विजिट करवाई उनके यहाँ। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बहुत अच्छे से ऑनर किया। सो आप जरूर देख के आइएगा। सो बहुत सुंदर बात कही कि आर्काइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इफ यू कैन ओपन अ म्यूजियम, आई थिंक नथिंग लाइक इट। सो एक क्वेश्चन आया है मीता से, वो कहती है एज एन एक्सपोर्टर आपको स्पेसिफिकली क्या चैलेंजेस फेस करने को पड़े? देखिए, एक्सपोर्टर के उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। यहाँ पे अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, EPCH, जिसको पहले तो अपने आप को उसमें एनरोल कर लीजिए, और उसके बाद हमको उसके लिए किस कंट्री में हम भेजना चाह रहे हैं माल, उस कंट्री की पूरी प्रोफाइल देखिए कि उनको क्या क्या चीज चाहिए। तीसरी बात ये रहेगी कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, और आजकल तो सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। और अगर टेस्ट रिपोर्ट वो करनी है तो उन सब चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम बना लिए और दे लिए, या तो फिर पहले आप किसी के साथ यू कैन शेक द हैंड फॉर विद समबडी, एंड जब आपको ये यकीन हो जाए कि अब आप कर सकती हैं अपने आप, और फिर अपने आप करना शुरू कर सकती हैं, तो ये एक बहुत जरूरी वो हो जाता है। क्योंकि इसके थोड़े नॉर्म्स मुश्किल हैं। अब धीरे धीरे और भी टेस्टिंग रिपोर्ट, ये वो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो बेहतर यही है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकेंड टाइम, तो किसी न किसी एक्सपोर्टर के पास जाके, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट आपको पूरी तरह से जानकारी दे देगा। बहुत सुंदर। आई थिंक इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप आपने सारा बहुत अच्छे से बताया है। सोहिनी इज अ स्टूडेंट, अ फाउंडेशन स्टूडेंट फ्रॉम कोलकाता, who has written, what kind of quality and passion should a new woman entrepreneur have in her? Say it again. What is the kind of she's saying the kind of passion, or the quality or the traits or the attributes that a new woman entrepreneur should have, न्यू एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो यूथ है, जो नए यंग। बिल्कुल समझ। यूथ के पास तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो इंटरनेट खोल के उनको सारी जानकारी मिल जाती है, जो बहुत पहले नहीं थी। और सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगी, उतना ही आपको आगे जाके उसका फायदा होगा। बिल्कुल भी। और अगर एक बार आप फेल हो जाती हैं तो बिल्कुल डरिए मत। इसका मतलब आपको ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तो मेरा पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्शन में आ गया था। पूरा कंसाइनमेंट मेरा फेल हो गया था, और तब मैं वापस जाके मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आप बहुत इजीली आगे बढ़ सकेंगी। और पहला ही आपका बहुत अच्छे से चला जाता है तो कुछ गलतियां होती हैं, वो छूट जाती हैं, एंड देन ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड गो स्लो। दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। वाह, आपके मुंह से एक एक बात ऐसी छनी हुई निकल रही है, ऐसी फिल्टर्ड, मजा आ गया आज तो सुनकर के। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप कि आई थिंक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक फेलियर के साथ लोग काम छोड़ देते हैं कई सारे, जो कि आपका कहना है कि छोड़ना नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अगली बार फेल नहीं होंगे, which is a very profound thing. So हसीना चक्कीवाला है, ये हमारी विमेन मेंटर्स फोरम जो उदयपुर में है, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल रखा है वहां पे। सो हसीना वहां पर अपने चेंबर की प्रेसिडेंट भी है अभी। सो उनका क्वेश्चन ये है कि आपने अपने परिवार को, क्योंकि हसीना इज ऑल्सो फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली एंड मे बी देयर मस्ट बी चैलेंजेस, तो शी इज सेइंग कि 40 साल पहले कैसे आपने अपने परिवार को मेक्सिको के लिए मनवाया, जहां पर मेक्सिको में इतना डेंजरस है, जहां पे काफी सारे चैलेंजेस और भी हैं, जो कि एक वुमन के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। सो आपने कैसे मनवाया?
देखिए बहुत आप लोग इसको कोई वो चीज ना लें, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी हो जाता है, और मैं पर्सनल नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि हर महिला के उसमें ये चीजें आती हैं, और घरेलू महिला भी हूं मैं बहुत ज्यादा। तो देखिए, जब आप शादी होके जाते हैं, आई थिंक you must be married. Yeah, She's Hasina is married. She's got children who are teenagers. हसीना Yeah, जी, मैं बहुत घरेलू महिला हूँ, और ये घरेलू के उससे ही मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ, ना कि हम टेबल पे बैठे हैं बहुत। देखिए क्या होता है, जब शादी होके आते हैं अपन, और तभी हमको लगता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज। जब आप शादी होके आते हैं और दूसरे घर में आते हैं, तो पहले दूसरे घर के लोगों को अपना बनाइए। वो एक थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, पर वो जो छोटा सा सेक्रीफाइस होगा आपकी जिंदगी बना देगा, और पूरे घर की को रौनक, घर में रौनक रहेगी। वो ये कि आपको साल 2 साल अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक रेपो बना के रखना होगा, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा, और भूल जाइए आप किस घर से आए हैं, ये सोचिए यही मेरा घर है, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे कैसा भी। और जब ये विश्वास जब बन जाता है, तो आपको कहीं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्चना जी, आपके साथ भी यही है, क्योंकि आपने सबसे पहले विश्वास जगाया, और आज देखिए आप कहां से कहां पहुंची। मेरे ख्याल से मैं सही कह रही हूँ या नहीं? ये आपका प्यार है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर कहा आपने। हर चीज में वक्त लगता है। आई थिंक वो अपना जो पैशन है उसके साथ में, इंसान के साथ में चैलेंजेस आएंगे, पर वो पैशन नहीं छूटना चाहिए। सो चैलेंजेस विल कम मोर, बिकॉज आप जब बड़ा काम करने निकलते हैं तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे और एस्पिरेशंस भी बड़ी होंगी, तो दोनों को खुद को ही डील करना पड़ेगा। तो अगर हम काम छोटा करेंगे तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, मस्त रहो। तो ये तो बात है। मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ में ये है, क्योंकि मैं जब लंदन गई थी पहली बार, 1 जनवरी को लैंड करी थी। हिंदुस्तान में कभी अकेली नहीं निकली, कभी अकेले कभी गई नहीं, और गई तो सीधा इंग्लैंड पहले। और वो भी 1 जनवरी की रात, मतलब पहुंचना जहां सब सन्नाटा। जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे आपको ठहरने की जगह नहीं मिल रही होगी, और मुझे लेस्टर निकलना था आगे। मुझे याद है जैन मंदिर में 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद मुझे खाना खाने को मिला। जब मुझे आज भी याद है, 2 रुपए में मुझे फुल्का मिला और सब्जी मिली। इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई नो। ये सारी चीजें तो आएंगी, और आपको धीरे धीरे उसमें बहुत अच्छा भी लगने लगेगा कि देखो मैं कहाँ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। और मैं भी 2-2 बैग अपने दोनों कंधों पे लेके जाती थी वहां पे, दिखाने के लिए कि देखो हम ये बनाते हैं। तो वो चैलेंजेस तो हमको सहने पड़ते हैं। यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और 10 से 15 घंटे काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आपने शोहिनी का भी जवाब दिया, इनका भी दिया। सो अन्नपूर्णा का क्वेश्चन है जी कि in this awesome journey, what are your greatest fear and how do you manage it? So अन्नपूर्णा हमारी बहुत ही होनहार मेंटी हैं, एंड ये हिंदी पढ़ाती हैं ऑनलाइन। ये उदयपुर से यहाँ शिफ्ट हुई, और इन्होंने यहाँ विमेन मेंटर्स फोरम को ज्वाइन किया, एंड काफी सारे इनको नेटवर्क मिला यहाँ पर। एंड हमारे यहाँ पर जो ग्रुप है ना, उसमें हम लोग व्हाट्सएप का एक है जिसमें 200-250 लोग हैं हम लोग, एंड सब ओपनली अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नई चीज निकाल रहे हैं। सो अन्नपूर्णा ने बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस सेट करी है। तो इनका कहना है कि भाई आपके फियर्स क्या हैं? फियर्स क्या है? देखिए, वैसे तो जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको ये लगता है ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा होता है। पर जैसे हीथ्रो का इन्होंने वो किया, मतलब मेरे आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट फियर मेरा आगे क्या होगा, इसके लिए पूछना चाह रहे हैं, या जो चला गया उसमें पूछना चाह रहे हैं? मेरा मानना है शायद ये समझना ये चाह रही हैं, क्योंकि हर इंसान, क्योंकि फियर इज इनहेरेंट इन every human being, right? So when we evolve, we are actually fighting our own fears. So कई बार क्या होता है, हमें फियर्स भी जब हम छोटे होते हैं तो अलग होते हैं, बट मिडिल एज में आते अलग होते हैं।
इस एज में आकर के एक अलग किस्म का फियर होता है, जो कि so the fear is very natural to every human being's existence. So what is the fear that you are encountering right now? That's what probably she wants to know. देखिए, ऐसा तो अब इस समय तो मेरे पास कोई फियर ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊं। शुरू में जरूर फियर होता था मेरा कि समय पे मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं, समय पे मेरा कंसाइनमेंट जाएगा कि नहीं, तो समय का मेरे को फियर बहुत रहता है। इसीलिए शायद आज भी देखिए, मैं 5 मिनट पहले आके यहाँ बैठ गई, तो मुझे समय का बहुत फियर रहता है कि मेरे को हर काम समय पे होगा कि नहीं, समय पे करना है, समय पे जाना है, समय पे बैठना है। तो ये समय का हमेशा मेरे को बहुत ज्यादा फियर रहता है, और मुझे लगता है कि शायद किसी रूप में ये फियर अच्छा भी है, ताकि क्या होता है कि जब समय को अपन आगे चल के और वो करते हैं और जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो कई बार आपके पास समय थोड़ा बच जाता है, कोई चीज आप भूल जाते हैं तो वापस जाके उसको लेके भी आ सकते हैं। तो समय का फियर मेरे को अक्सर रहता है। तो ये कह रही है कि आप उसको मैनेज कैसे करती हैं? मेरी घड़ी 15 मिनट आगे रहती है। क्या बात है, नाइस, इंटरेस्टिंग। Okay, so let's have another question. So everybody is finding this conversation very interesting. So Neeru has to ask a question. Sure. That have you even thought of establishing a formal school to train the young, or believe that you would like to preserve it as a handicraft? No, I really want to open the institute. Like, if anybody wants to come and learn, always welcome. मेरे द्वार हमेशा खुले हैं, और मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आएं, ताकि ये जयपुर ब्लू पॉटरी और आगे 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 बढ़ती जाए। तो मुझे तो अगर कोई और भी इसको खोलना चाह रहा है तो मैं तैयार हूँ उनके साथ हाथ मिलाने के लिए। तो मैं यहाँ बैठी लीला दीदी, आगे आइए। तो मैं कह रही हूँ कि प्लीज आगे आइए, इस क्राफ्ट को हमको बहुत आगे तक लेके जाना है, क्योंकि ये दुनिया का यूनिक क्राफ्ट है। और आज अगर आप पूरी दुनिया में घूमेंगे तो एक टर्की और एक जयपुर, सिर्फ 2 जगह ऐसी है जो ये क्राफ्ट हो रहा है। टर्की भी आजकल ज्यादातर चाइना से बनवाने लगा है, तो मुझे लगता है कि टर्की में भी अब शायद 10-20 साल और चल पाए, पर हमारे हिंदुस्तान में तो अभी भी जब तक किसान है तब तक हमारा हैंडीक्राफ्ट है, और जब तक हैंडीक्राफ्ट है तब तक किसान आगे भी बढ़ेगा। तो मैं तो चाह रही हूँ अर्चना जी कि आप एक फैकल्टी खोलें आपके वहां पे, सिर्फ ब्लू पॉटरी के लिए। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ ऑलरेडी टेराकोटा एंड सिरेमिक का है, पर ब्लू पॉटरी हम जरूर इसको और एक्सप्लोर करके करना चाहेंगे। प्लीज करिए आप। इनफैक्ट मुझे याद है व्हेन आई वाज वेरी यंग इन माय करियर, आई हैड कम टू यू, एंड मैं जयपुर के लिए भी नई थी, एंड चलते चलते सीस्किम की गलियों में आपकी जगह मिली, एंड हमने इंस्पिरेशन लेके पूरा कलेक्शन बनाया साड़ीज का, सलवार कमीज का, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द कलर पैलेट दैट यू हैड क्रिएटेड एंड द मोटिव्स। सो अभी भी मेरे पास साड़ी है वो, सो विच इज इंटरेस्टिंग। सो बहुत सुंदर आपने कहा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इस क्राफ्ट के साथ में। मेरा आज भी मेरा जो डायरेक्टर्स, मेरा खुद का जो रूम है, मैंने बहुत खूबसूरत प्लेट्स लगा रखी है, जो कि अपने कृपाल सिंह जी उन्होंने करा, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो हमारे यहाँ पढ़ाते थे, हटवाल सर। सो हटवाल सर ने ऊटी में बैठ के जो पेंटिंग्स बनाई थी, वो पेंटिंग्स उन प्लेट्स पे करी हुई हैं, और कृपाल सिंह जी ने तो बहुत सुंदर आपको बिल्कुल लैंडस्केप, बहुत इंटरेस्टिंग लैंडस्केप्स बने हुए हैं उसमें। बहुत मैं आपको पिक्चर भिजवाऊंगी उसकी जरूर, प्लीज। या सो ज्यादा अच्छी होगी तो हम म्यूजियम में ले जाएंगे। अच्छा, ओह क्या बात है। So any more questions that we are looking at? Yes, there are a couple of more ones. What are the 3 qualities, great qualities, which you feel have made you outstanding? So here's Rimmi who's asking this question. तो मैं उसका जवाब तो ये दूंगी कि my mother showed me the path, my mother-in-law gave me strength, my husband all the time with me, what I am today, with my craftsmen and my craftsmen. Yeah. So this is, I can tell you.
सो आपने अपना पूरा जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो अपने परिवार को और अपने समुदाय को दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के वजह से हूँ। अगर आपकी क्राफ्ट प्रतिभा जो तो निखरी कुछ है। भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि परिवार सबसे पहले आता है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी अपने आप उभर के आ जाती है। राइट। सो बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न का जवाब दिया. सो आई एम श्योर रिमी इज हैप्पी टू हैव गॉटन दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. ये कह रही है नीरू, कैन आई कंट्रीब्यूट अ फ्यू पीसेस टू योर म्यूजियम फ्रॉम मेक्सिको? श्योर, ओके, बिल्कुल। तो आपका म्यूजियम कब तक आ रहा है लीला जी? बस आप सब लोगों से हाथ मिलाएंगे. अच्छा, बहुत जरूरी है हाथ मिलाना. और देखती हूँ कि किस तरह से जगह मेरे पास है, सब कुछ है, पर मेरे ख्याल से ये जो अभी 2020 बीत जाए, 21 हम सोचते हैं कि क्या रहता है, शायद 22 तक हम शुरू कर दें. बहुत बढ़िया. सो हमारे बीच में वासु मित्र भी हैं, तो आज कुछ मेल मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया है, बिकॉज वी ओपनड इट टू द आर्च के नेटवर्क को भी. सो टोटली ब्लेस्ड टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट अ मेंटर मीन्स टू अ मेंटी, हाउ डू यू सी इट? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द सेम. कि एक मेंटर मेंटी रिलेशनशिप को क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है क्या, और अगर है तो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, मेरे मेंटर अगर मैं कहूँ, सवाल मेरे से ही है ना? हाँ जी, जी. मेरे मेंटर जहां तक मैं सोचती हूँ, क्योंकि जब शुरू में मैं यहाँ आई तो अनोखी बहुत ज्यादा जाया करती थी, तो मैं अपने आप को अनोखी में बहुत कुछ सीखा मैंने, और उनके काम करने के तरीके को भी बहुत कुछ सीखा मैंने. तो मैं हमेशा मेरे मेंटर अनोखी को मानती हूँ कि अच्छा. उनके वजह से, क्योंकि वहां जाके मैंने बहुत सीखा उनसे बात करके. और जब मैं कलकत्ता से यहाँ आई थी तो एक साल उनका एक छोटा सा स्कूल था जहाँ रोज जाया करती थी मैं, और स्कूल में बाकी लोगों को भी देखती थी और वहां पे काम करने वाले लोगों को भी देखती थी, और उन लोगों का स्टाइल ऑफ वर्किंग, व्हाट यू कॉल दैट, एंड दैट्स हाउ आई फील, सो दे आर माय मेंटर. बहुत सुंदर. सो एनी मोर क्वेश्चंस? उसके अंदर एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि अगर पूरा मतलब उनको, कि मेंटर, अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह आपको अच्छा लग रहा है, तो आप साल 2 साल उनके साथ रहिए, और उससे क्या होगा कि आपकी जो सोच है वो खुलती जाएगी, और आपको अपना जो काम करना है उसका स्तर मिल जाएगा. और यही मेरे साथ हुआ अनोखी में जाने से. मुझे उनका जो वर्किंग स्टाइल तो समझ आया, पर वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और उस तरह से मैंने भी आगे बढ़ना शुरू किया. सो दैट वाज आई ऑलवेज फील. इनफैक्ट फेथ का अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शहर के लिए. पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग को जो उन्होंने लाइफ दी है, चाहे लिबर्टी से लेकर के पूरे वर्ल्ड मार्केट्स तक लेके गई हैं, बहुत अहम काम किया है उन्होंने. एंड बहुत, मैं भी उनका बहुत आदर सम्मान करती हूँ इस काम के लिए. एंड म्यूजिक की राह में भी उन्होंने बहुत अच्छा भी कर ही रही है. So that's a great comment. A lot of learning from her to take. Yeah, that's true. So in fact, जब colloquium हमने किया तो मैं first conversation Faith से ही करने गई थी. So Faith was very kind, to share all her ideas and everything. और काफी अच्छा रहा. She was there to support us from the back end. So चाहे हम अनोखी म्यूजियम को वापस, हमारी जो फील्ड ट्रिप जो एक तरफ ज्ञान म्यूजियम गई, एक तरफ हमने सिटी पैलेस म्यूजियम भेजा, और एक तरफ अनोखी म्यूजियम भेजा. तो 3 म्यूजियम्स हमने अलग अलग 3 ट्रिप्स रखे हमने. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. So thank you Leela ji, it was such a amazing session with you, such heart to heart conversation. So कोई ये पूछ रहे हैं कि don't men need to maintain? Oh come on, I am going to take this question for sure. Sure, please. So so HP, I don't know who he is. So you mentioned that women can do anything only if they maintain peace and harmony in the house. Doesn't that apply to men too? Oh, that's fantastic. Don't men need to maintain peace and harmony? हम दोनों ही जवाब दे सकते हैं. आप दीजिए. नहीं नहीं, आप बोले. नहीं, आपके लिए ही है. उनका ये कहना है कि भाई क्या ये पुरुषों के लिए भी?
मैंने तो सबसे पहले ही ये चीज बताई थी आपको कि 2 साल जब कोई भी आते हैं तो उनको अपने घर को देना है, उनके सब लोगों को समझना है, और इसी तरह जो मेन फॉक्स हैं उनको भी उन महिलाओं को समझना है। घर में जो आती हैं, जो भी आ रही हैं घर में, पहले उनको समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये जो समझदारी होती है वो जिंदगी में बहुत, दोनों को ही बहुत आगे ले जाती है। तो वो समझदारी होना बहुत जरूरी है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी लीला जी, जी कई बार केवल ये पुरुष और महिला की बात नहीं आती, जैसे आपने कहा वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सो चाहे हम घर में 5 जने हैं, हम सब अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो हमारे सबके तौर तरीके अलग होते हैं, हमारे देखने का नजरिया अलग होता है, हमारी समझ अलग होती है, हमारी परवरिश अलग होती है। तो हम में से हर जना, चाहे हम घर में चाहे 2 जने रहे या 4 जने रहे, हर जने को हर जने के साथ में कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ना ही संभव हो पाता है। सो अगर आजकल अगर आप साइंटिफिक स्टडीज देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ये वो क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया है कि जब आप एक सोशल क्रीचर की तरह, जब आप समूह में रहते हैं, तभी आपका सर्वांगीण विकास होता है। मतलब एक इंसान की प्रतिभा, उसकी क्रिएटिविटी, उसका पूरा जो उसके जीवन का जो मूल है वो तभी हो पाता है जब वो एक संगठन के साथ में और अपने एक परिवार के रूप में रह पाता है। जो लोग ज्यादातर अकेले रहते हैं वो कई बार हो सकते क्रिएटिविटी की हाइट्स पा जाते हैं, बट दे कोलैप्स at very early ages, and the collapse could be of these different reasons of not having found that different aspect of their life complete. So I think आपने बहुत सुंदर कहा कि सब कुछ बैलेंस करते हुए, अगर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आई थिंक एक पुरुष के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है परिवार में जहां पर एक नई महिला आती है, सास बहू ननद भुजाई, सारा कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई थिंक फॉर एवरीबडी इट्स वेरी चैलेंजिंग, इक्वली फॉर द मेन आल्सो. Yeah. So I think with this conversation, we're going to round off this beautiful session with you. And you are truly an high performance lady with your energy levels equally beautiful at this, I'd not call this age, but with this experience. You can. Yes. Yeah, not this thing. Yeah. Yes. So thank you for being with us. And every month we're going to have one high performance women entrepreneur who's going to come and join us for this kind of a conversation, where we are going to say the city of Jaipur has extraordinary women who are going to be serving as mentors to the global, citizens. And I call every citizen as a global citizen, anything before being India or Jaipur or anything for that matter. And I think हम में से हर जने की सोच विकसित होना बहुत जरूरी है, और विश्व स्तरीय ग्लोबल थिंकिंग रखने के लिए जो मैम ने कहा, ट्रैवल, एक्सपोजर, हम दूसरों से सीखें, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेकर के आए अपने फुटस्टेप्स पे, एंड अपनी धरोहर की इज्जत करते हुए आगे बढ़े. ये बहुत मूल और बहुत ही हमारे लिए गहरी बात रहेगी. तभी हम अपनी धरोहर के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, हमारे रूट्स नहीं जुड़े रहेंगे, तो कितना ही हम घूम ले वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा. तो आके हमें क्रिएशन यही करना है, इसी धरती पे करना है, लेके सब जगह से आएंगे पर बोएंगे यहीं पर ही, और सबके लिए यहीं पर फलाएंगे और फूलेंगे. तो तभी जाकर के हमारे लिए संभव हो पाएगा. तो थैंक यू सो मच. एंड मैं इससे पहले मैं थैंक्स दूं, उसके साथ साथ नीलोफर हमारी नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयर हैं, इलेक्ट हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. नीलोफर रन्स एक्सक्लूसिव स्टोर. शी इज बीन टू सोशल वर्क. सो मैं इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ. जहाँ ये सोशल वर्क से उतर करके एक एंटरप्रेन्योर बनी है, तो ये क्राफ्ट सेक्टर के साथ काम करती हैं काफी. शी हैज अ ब्यूटीफुल स्टोर, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल साड़ीज. आई थिंक लीला जी आपको बहुत शौक है अच्छी साड़ियों का, मैं देखती हूँ, जैसे मुझे है, तो आप इनके यहाँ से जरूर ले सकते हैं. सो we'll have the thank you note coming from Nilofer. Yeah. Thank you, Archana ji, for connecting us with such an influential personality like Leela ma'am, and giving us the opportunity to be in the audience for such an engaging and fruitful session. Thank you, Leela ma'am, for gracing us with your presence and sharing such valuable insight from your entrepreneur journey. Not to forget that you were the one who inspired me during my initial years. Leela ma'am, I just cannot forget
like when I started my journey as an entrepreneur, so I happened to meet you, and those were the days. I mean, from there I took off, and till now I keep receiving that kind of inspiration and energy from you. So I am, from my heart, I am so grateful to you and so happy to see you here talking to at this platform and inspiring our mentors and mentees. And Mentor Forum has given us this opportunity, so thank you to the forum and Archana ji again. And Leela ma'am, you have been so inspiring. I wish that you keep visiting our these platforms, and then you keep giving us your insight and your wisdom, pearl of wisdom, you know. So so to keep us going and to keep us, you know, facing the challenges we all have as entrepreneurs. So thank you so much from the bottom of my heart. And it will be really a great pleasure if you can just connect with the Women Mentor Forum Jaipur. And because हमें सब लोगों को आपकी बहुत जरूरत है लीला जी, that energy, that motivation, that inspiration जो आज आपसे हमें मिली है, I can vouch for that. Everybody must have gained so much today, because all we all women, we face the similar kind of problems and issues. And how beautifully you have explained, you have just I mean explained those issues in such a beautiful manner कि हमें सबको गुत्थी हमारी खुल गई होंगी, I think, I'm sure, कि ये challenges को हमें कैसे handle करना है, कैसे face करना है. So thank you so much once again, and we keep I mean, we'll look forward to have you again. Archana ji, please make sure that she keeps giving us, you know. So I'd like to share that you know, our students did a project, and she was kind enough to even you know, give a token of appreciation as a reward, and to our students as well, and come and, you know, always inspire them. So she's been trying to make sure that her outreach is there with the younger generation. So for the Women Mentors Forum, we definitely connect with her to take things ahead. Yeah. So we'll call a closure for the session. And once again, लीला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. आप कोई एक लास्ट शब्द कहना चाहेंगे तो जरूर आप. उससे पहले मैं 1 मिनट, चूंकि धीरेन्द्र जैन साहब आपके साथ भी बहुत जुड़े हुए थे, हाँ जी, अगर अपन 2 में उनके लिए वो कर लें तो बहुत बढ़िया. जरूर 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 क्योंकि जरूर वो उन्होंने बहुत सब लोगों के लिए बहुत कुछ वो करते रहे हैं, और बिना किसी उसके, और आप भी बहुत उनसे जुड़ी हुई रही हैं शुरू से मेरे ख्याल से. तो 2 मिनट उनके लिए आप कुछ बोल दें और हम 2 मिनट मौन कर लें तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि आपने मेंटरशिप की बात कही, मैं कहूंगी मेरे एकमात्र मेंटर जयपुर शहर में आने के बाद में वही थे. और जितना प्रोत्साहन, जितना हौसला अफजाई, जितनी पॉजिटिविटी जो मुझे उनसे मिली, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. And I really blessed that, you know, his soul rests in peace. And आपने बहुत अच्छा याद दिलाया. 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर के उनके लिए शांति करेंगे. Okay, so coming month of December, we're going to have a general assembly. So all the members are going to get together, and we're going to talk about the whole month of, you know, COVID के दौरान हमने जो कुछ भी किया. So we did almost 3 to 4 chats. हमने हर महीने business pitch events किया है. हमारे करीबन 12 mentees हैं जो startup oasis के साथ में अभी they are being mentored to the next level. So that's a very good thing. So I want to acknowledge all our master mentors once again. Archana Jain, Nilofer, Sabah Khan, Anju Singh, Shivali, Vinny, नीता माथुर, आरती तोतुका, इन सब लोगों ने मिलकर के, जया सिंगी, देन वीणा जामड़, इन सब लोगों ने मिलके तरह तरह से, चाहे वो फाइनेंस का लेवल पे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे इमेज कंसल्टेंसी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पीआर हो, बिजनेस प्लान बनाना हो, इन सब के लिए तैयारी करके हमारी मेंटीज को तैयार किया. तो उसकी वजह से आज वो नेक्स्ट लेवल की मेंटरिंग पे जा पाए हैं. अभी हम जल्दी ही फिक्की के साथ में ग्रेटर 50 इनिशिएटिव के साथ में हमारा MOU साइन होगा, विच इज अ पैन इंडिया लेवल इनिशिएटिव.
So wahan par we will be introducing mentors from our mentors forum and mentees of our mentees to the international forum. So that's the next opportunity that is going to come to the Women Mentors Forum. So let's stay tuned, and the next business pitch is going to happen, and we're going to soon meet again. So thank you so much and have a nice evening.